ڈائناسوروں نے ہماری زمین پر لگ بھگ 160 ملین سالوں تک راج کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سپیشیز ہماری زمین کی سب سے ڈومیننٹ سپیشیز رہنے والی ہے، پر ایک دن ان کی یہ دنیا ایک ماؤنٹ ایورسٹ جتنے پتھر نے ختم کر دی، جو کہ سیدھا سپیس سے آ کر گرا تھا۔ آج میں آپ کو انہی ریپٹائلز کی کہانی سناؤں گا اور ہم دیکھیں گے وہ تباہی کا منظر کیسا تھا جنہوں نے ان کی دنیا کا خاتمہ کر دیا۔ قریب 66 ملین سال پہلے کی بات ہے، کریٹیسیس پیریڈ ابھی ختم ہوا تھا، جو کہ میسوزوئک ایرا کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ پینجیس سپر کانٹیننٹس کے پارٹس ایک دوسرے سے الگ ہو کر ادھر ادھر بکھرنے لگے تھے۔ پینجیا بہت بڑا سپر کانٹیننٹ تھا جس کے ٹکڑوں سے آج بہت سے ممالک کا جنم ہوا ہے۔ اس وقت جب یہ کانٹیننٹ بکھر کر الگ ہونے لگا تو یہ آلموسٹ آج کی دنیا جیسی شکل لینے لگا۔ کریٹیسیس پیریڈ کے اینڈ تک ساؤتھ اور نارتھ امریکہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے۔ اس وقت جس شیپ میں آسٹریلیا، گرین لینڈ اور افریقہ تھے، اسی شیپ میں وہ آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بالکل اسی وقت میں یورپ اور ایشیا کی آؤٹ لائن بننا شروع ہوئی تھی۔ سائبیریا، منگولیا اور انڈیز کی ماؤنٹین رینجز دھیرے دھیرے ابھر کر باہر نکل رہی تھی۔ کریٹیسیس پیریڈ قریب 79 ملین سالوں تک چلا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ میسوزوئک ایرا کا سب سے بڑا پیریڈ تھا۔ ہماری زمین کا کلائمیٹ ان 79 ملین سالوں میں کئی بار بدلا تھا، اور اس پیریڈ کے اینڈ تک کلائمیٹ کافی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ زمین کے دونوں پولز پر آئس کیپس بننے لگے تھے، اور سردیوں کا موسم اور بھی زیادہ شدید ہو گیا تھا۔ بہت سی جگہوں پر ٹیمپریچر -10 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا۔ وہیں الاسکا جیسی جگہ میں یہی ٹیمپریچر -45 ڈگری سیلسیس تک آ گیا تھا۔ اگر اس دنیا کو آج کی دنیا سے کمپیئر کریں تو تب وہ زیادہ گرم تھا۔ کانٹیننٹ کے سرفیس پر ہریالی چھائی ہوئی تھی۔ اسی پیریڈ کے دوران فلاورنگ پلانٹس کا بھی جنم ہوا تھا۔ کونیفرز، کینگو اور باقی کے دوسرے ایسے ہی پلانٹس جو پچھلے ایرا میں بنے تھے، انہوں نے گھنے جنگلوں کو جنم دے دیا تھا۔ ان پلانٹس کے ذریعے جو مٹی بن رہی تھی وہ سوئل کو اور بھی زیادہ فرٹیلائز بنا رہی تھی، یعنی کہ دوسرے پلانٹس کے لیے یہاں پہ پیدا ہونا بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے فلاورنگ پلانٹ کی آبادی بڑھتی گئی، اس وقت میں موجود انسیکٹس بھی ایوولو ہوتے گئے۔ بٹرفلائیز اور بیز نے اڑنا شروع کر دیا تھا، اور وہ پھولوں میں موجود پولنز کو یہاں سے وہاں لے جانے کا کام کرنے لگے تھے۔ بیج والے فروٹس انہی پولنز کی وجہ سے الگ الگ جگہوں پہ پیدا ہوتے ہیں، اور انہیں یہاں وہاں لے جانے کا کام بھی بٹرفلائیز اور بیز کا ہی ہوتا ہے۔ انسیکٹس کی آبادی بڑھنے سے پرندوں کو بھی فائدہ ہونے لگا تھا، کیونکہ ان کے لیے بھاری مقدار میں کھانا موجود ہونے لگا تھا۔ اسی انوائرمنٹ نے بہت سے ہربیورس ڈائناسورز کو ایوولو ہونے کا موقع دیا۔ اس وقت میں زمین کی کنڈیشن اتنی اچھی تھی کہ بہت سے کارنیورس، انسیکٹیورس اور پریمیٹس کی پاپولیشن تیزی سے بڑھنے لگی تھی۔ سچ کہوں تو اس وقت میں یہ سپیشیز آج کے جانوروں کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ تب زیادہ تر چوہے اور چھوٹے میملز کو ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ ہمیں اس بارے میں اس وقت پتا چلا جب سائنٹسٹ کو ایک بی سینٹر کا فوسلائزڈ اینیمل ملا، اس کا نام سیبر ٹوتھڈ اسکیرل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سپیشیز زیادہ تر انسیکٹس ہی کھایا کرتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے دوسرے حصے میں بڑے جاندار نہیں تھے۔ میڈاگاسکر میں ہمیں ایک بڑی مخلوق کا فوسل ملا تھا جو کہ ایک ہربیورس میمل تھا۔ یہ جانور دکھنے میں بھی بہت الگ تھا۔ اس کے سر کے دونوں طرف کریسٹ نام کی ایک چیز تھی جو کہ اس کے سر کی حفاظت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس جانور کی سونگنے کی طاقت بھی کمال کی تھی۔ اس نسل کے جانوروں کو مرموٹ کہا جاتا ہے، جو کہ ریڈنٹس کی کیٹیگری میں ہی آتے ہیں، لیکن ان میں ہی اگر اصل جائنٹس میمل کی بات کریں تو ریپونومیمس کریٹیسیس پیریڈ میں کافی بڑے تھے۔ ان کی باڈی 14 میٹر تک لمبی تھی اور وزن 2 سے 14 کلو تک پہنچ جاتا تھا۔ آپ کی امیجنیشن کے لیے بتا دوں کہ یہ جانور آج کے ماڈرن ورلڈ میں پایا جانے والا ٹسمینین ڈیول جیسا دکھتا تھا۔ یہ جانور ایسا پریڈیٹر تھا جو ابھی پیدا ہوئے ڈائناسوروں کو بھی کھاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ڈائناسورز ایوولوشن کی سیڑھی پر سب سے ٹاپ پر پہنچ گئے۔ میسوزوئک ایرا کی فوڈ چین میں وہی سب سے اوپر تھے۔ بہت سے ڈائناسورز کی اقسام کانٹیننٹ کے ہر حصے میں موجود تھی، اور وہ بھی الگ الگ شیپ اور سائز میں۔ ان میں سے سب سے چھوٹی نسل کا نام تھا اوکلوڈینٹاوس کھونگرائے۔ اس منی ریپٹائل کا سر صرف 14 ملی میٹر لمبا تھا۔ بدقسمتی سے سائنسدانوں کو اس کے جسم کا باقی حصہ نہیں ملا ہے، لیکن اس کے سر کے سائز کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آج کے زمانے کی ہمنگ برڈ جتنا بڑا تھا۔ بہت سے ریکارڈز کے مطابق ایلموسورس نام کا ڈائناسور سب سے بڑا ڈائناسور تھا۔ یہ جانور 29 میٹر تک لمبا تھا اور اس کا وزن 38 ٹن تھا۔ صرف اس کی پونچھ کی بات کریں تو یہ 12 میٹر تک لمبی تھی۔ اب ہم اس دور میں پہنچ جاتے ہیں جب ایک بڑا ایسٹرائیڈ ان کے اوپر گرنے والا تھا۔ ایسٹرائیڈ امپیکٹ کے قریب 5 گھنٹے پہلے سبھی جانور، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھے، اپنی نارمل زندگی کو اسی روٹین کے ساتھ جی رہے تھے۔ 50 سیلموسورس کا ایک گروپ یوکیٹن پیننسولا میں مزے سے اپنا کھانا کھا رہا تھا۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نسل پوری طرح سے ہربیورس تھی، جسے ہر روز 1 ٹن تک ویجیٹیشن کھانا پڑتا تھا۔ صرف کچھ ہی دنوں میں یہ جانور ایک بڑے جنگل کے سارے پتے کھا سکتے تھے۔ اب ایک بار ہم منگولیا اور چائنا کی ٹیریٹری میں آتے ہیں، جہاں پہ ٹربوسورس نام کی ایک بڑی مخلوق رہا کرتی تھی۔ یہ مخلوق 14 میٹر تک لمبی ہوا کرتی تھی اور پریڈیٹر کی لسٹ میں یہ سب سے بڑی مخلوقات میں سے ایک تھی۔ یہ جانور زیادہ تر پانی کے کنارے پر شکار کیا کرتے تھے، جہاں پہ چھوٹے جانور اکثر پانی پینے آیا کرتے تھے۔ کسی بھی دوسرے ٹربوسورس کی طرح یہ نسل بھی 2 پیروں پہ چلتی تھی۔ اس کے ہاتھ باقی باڈی کے کمپیریزن میں کافی چھوٹے ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شکار کو پکڑ سکتے تھے یا پھر پانی
पानी के अंदर मछलियों को पकड़ सकते थे, लेकिन इसका सबसे बड़ा हथियार था 70 नुकीले बड़े बड़े दांत, और इन दांतों की लंबाई 85 मिलीमीटर तक हुआ करती थी। अब चाइना से हटकर नॉर्थ अमेरिका की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे पैचिस फेलोसोरस नामी डायनासोर रहा करते थे। ये 4.5 मीटर लंबे डायनासोर 450 केजी के हुआ करते थे और देखने में ये काफी खतरनाक और यूनिक लगते थे। इसका स्कल करीब 25 सेंटीमीटर मोटी हड्डी के डोम से ढका होता था, जिसकी मदद से ये अपने प्रीडेटर पर हमला कर सकता था। इसके अलावा इसके सर पर स्पाइक्स भी हुआ करते थे, जो कि इसे बेहद खतरनाक बना देते थे। ये डायनासोर्स हर्बीवोर्स थे। ये अपने छोटे नुकीले दांतों से सब्ज पत्ते और फ्रूट चबाया करते थे, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक इन जानवरों ने अपनी डाइट में मीट को भी शामिल करके रखा था। इसके शिकार एम्फीपेन, बिना शेल के छोटे एनिमल्स, मैमल्स और इसके अलावा ये अभी पैदा हुए छोटे डायनासोर्स को भी खाता था। इन डायनासोर्स को समुद्र के पास रहना पसंद था, जहाँ पे बहुत से न्यूट्रिशन बीज मौजूद थे। इसके अलावा पानी में वो मछलियाँ और बड़े लिजर्ड को भी खा सकते थे। अब हम आ जाते हैं वेस्टर्न और नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे एनकिलोसोरस नाम के ये डायनासोर जंगल के अंदर मजे से अपना खाना चबा रहे थे। ये रेप्टाइल बेहद एक्सोटिक दिखता था। इसका साइज एक राइनो या एक बड़े एलिफेंट जितना हुआ करता था। इस जानवर की पूरी बॉडी एक बोन आर्मर से ढकी हुई थी। इसकी पूंछ पर एक पत्थर जैसी चीज थी, जिससे ये अपनी हिफाजत करता था। इतना खतरनाक दिखने के बाद भी ये जानवर काफी सीधा साधा हुआ करता था। ये एक हर्बीवोर्स जानवर था, जो कि सारा दिन सुकून से घास चबाया करता था और अपनी खतरनाक पूंछ से दूसरे प्रीडेटर से अपनी जान बचाता था। नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ सुकून से रहने वाले हर्बीवोर्स जानवर ही नहीं पाए जाते थे, बल्कि यहाँ पे बेहद खतरनाक मीट खाने वाले रेप्टाइल्स भी पाए जाते थे। जिस जगह पर एस्ट्रॉइड गिरने वाला था, उससे कई 100 किलोमीटर दूर कार्नोटोरस और टी-रेक्स जैसे प्रीडेटर रहा करते थे। कार्नोटोरस 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग सकते थे और ये अपने किसी भी शिकारी से आराम से बच सकते थे। वहीं टी-रेक्स 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागते थे और टी-रेक्स के पास किसी भी दूसरे जानवर से कहीं ज्यादा सूंघने की ताकत थी। और अगर बात इसकी नजर की जाए तो इसकी नजर आज के मॉडर्न जमाने में बाज के बराबर थी। इसकी आंखें बाइनोकुलर हुआ करती थी। ये अपनी आंखों की मदद से अलग अलग डायरेक्शन में देख सकता था। दोनों आंखों से आई इंफॉर्मेशन को ये सिंगल इमेज में कन्वर्ट कर देता था। इस टेक्निक से उसे एग्जैक्टली पता चल जाता था कि उसका शिकार कितनी दूर है। टी-रेक्स अपने इलाके को एग्रेशन के साथ प्रोटेक्ट करता था और लगभग हर चलने फिरने वाली चीज को ये खा जाता था। ये अपनी नस्ल के डायनासोर्स को भी नहीं छोड़ता था। अगर एक टी-रेक्स और कार्नोटोरस के बीच में फाइट हो तो टी-रेक्स बिना किसी मुश्किल के विनर होगा। एक तरफ जहाँ टी-रेक्स का वजन 6.8 टन था, वहीं दूसरी तरफ कार्नोटोरस का वजन 5 टन था। टी-रेक्स का मसल मास भी काफी ज्यादा हुआ करता था और कार्नोटोरस के सर पर 2 सींग थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये टी-रेक्स के सामने टिक नहीं पाता था। इनके बीच एक शेर और चीते की तरह का रिश्ता था। रिसर्चर्स ये मानते हैं कि टी-रेक्स को हर रोज करीब 100 किलो मांस खाने की जरूरत थी। ये सभी डायनासोर मामूल के मुताबिक अपनी जिंदगी जी रहे थे। उनके लिए ये दिन बिल्कुल आम दिन जैसा ही था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि 10 मिनट बाद एक बड़ा एस्ट्रॉइड खला से आकर जमीन से टकरा जाएगा और उनकी 75% आबादी को खत्म कर देगा। ये क्रेटेशियस पीरियड इसी पत्थर के साथ खत्म होने वाला था। 1980 में रिसर्चर्स ने ये हाइपोथेसिस दी कि इसी बड़े एस्ट्रॉइड की वजह से जमीन को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा था। रिसर्चर्स को जमीन पर कई जगहों पर मिट्टी के ऐसे टुकड़े मिले जिनमें इरिडियम मौजूद था। मैं आपको बता दूं कि रिसर्चर्स को जितना इरिडियम मिला वो आज तक जमीन पर हमें नेचुरल तरीके से नहीं मिला है, चाहे वो जमीन के सरफेस की बात हो या जमीन के अंदर कई फीट नीचे की। इरिडियम एक बहुत ही ज्यादा रेयर सब्सटेंस है जो कि जमीन पर बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन एस्ट्रॉइड्स में ये बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होता है। कई बार इरिडियम को स्पेस मेटल भी कहा जाता है। रिसर्चर्स ने अपनी इसी खोज से अंदाजा लगाया कि एक बड़ा एस्ट्रॉइड ही इतने ज्यादा इरिडियम को जमीन पर ला सकता है। इस डिस्कवरी के सिर्फ 10 साल बाद ही रिसर्चर्स की एक टीम ने उस जगह को खोज लिया जहाँ पे एग्जैक्ट एस्ट्रॉइड गिरा था। 180 किलोमीटर लंबा खड्डा हमें युकेटन पेनिनसुला में मिला था और जब इसकी एज का पता लगाया गया तो पता चला कि ये डायनासोर के वक्त से मिल रहा है और यहाँ पे भी भारी मिकदार में इरिडियम के सैंपल्स मिले और जैसे जैसे वो इस खड्डे से दूर जाते गए उन्हें और ज्यादा कम मेटल मिलने लगा। कुछ साल पहले न्यू जर्सी में करीब 25,000 जानवरों के फॉसिल्स मिले हैं और ये क्रिएचर उसी क्रेटेशियस पीरियड के आखिरी दिन मरे थे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें साइंटिस्ट को मास एक्सटिंक्शन होने का सबूत मिला है। उस आखिरी दिन पे आ जाते हैं जब एस्ट्रॉइड जमीन से टकराया था। एक 10 किलोमीटर का पत्थर जमीन के एटमॉस्फेयर में घुस चुका था। इसका वजन कई ट्रिलियन टन था और ग्रेविटी उस पत्थर पर और ज्यादा जोर दे रही थी, जिस वजह से उस ऑब्जेक्ट की रफ्तार 20 किलोमीटर पर सेकंड हो गई थी। जमीन के एटमॉस्फेयर में टकराने से इस पर और ज्यादा फ्रिक्शन पड़ने लगा और इसका टेम्परेचर कई हजार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उस वक्त कुछ टाइम के लिए ये ऑब्जेक्ट आसमान में मौजूद सूरज से भी ज्यादा चमक रहा था और ये रोशनी इतनी ज्यादा थी कि मुझे पूरा यकीन है कि जमीन पर मौजूद डायनासोर्स ने अपना सर आसमान की तरफ उठाकर इस एस्ट्रॉइड को देखा होगा। उस लाइट की तरफ देखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और धीरे धीरे उस तेज रोशनी ने डायनासोर्स की स्किन को जलाना शुरू कर दिया और वहाँ पे मौजूद दरख्त और प्लांट्स को आग लगने लगी और फिर तभी कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ एक टाइम पर रुक गया। डायनासोर्स अभी इस चीज से संभले ही थे कि अचानक कान फाड़ देने
देने वाले धमाके की आवाज सुनी और 10 किलोमीटर का एस्टेरॉइड गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास युकेटन पेनिनसुला में क्रैश हो जाता है। एस्टेरॉइड के टकराने से जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी वो करीब 10 मिलियन हिरोशिमा और नागासाकी एटम बॉम्ब्स के बराबर थी। कुछ ही सेकंड्स में ये एस्टेरॉइड जमीन के अंदर 20 किलोमीटर जमीन के क्रस्ट में घुस गया। पूरी जमीन एक घंटी की वाइब्रेशन की तरह खड़खड़ाने लगी। इसके इम्पैक्ट की ताकत और उसके साथ पैदा होने वाले साउंड वेव को आपको अंदाजा देने के लिए हाल ही में हुए क्रेकाटोआ वोल्केनो एक्सप्लोजन की बात करते हैं। जब ये वोल्केनो फटा था तो करीब 70 किलोमीटर दूर रहने वाले इंसानों के कानों के पर्दे फट गए थे और उस एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट इससे मिलियंस गुना ज्यादा था। इन सभी चीजों के साथ जब इम्पैक्ट हुआ तो तब चारों तरफ शॉक वेव्स पैदा होने लगी। ये साउंड की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से फैल रहे थे। ये शॉक वेव्स इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि इसके साथ डायनासोर्स की चमड़ी उतरने लगी थी और बड़े बड़े डायनासोर्स को ये हवा में उछालकर दूर फेंक रही थी। डायनासोर्स के हिसाब से देखें तो उनकी मौत बहुत जल्दी हो गई थी। एक तेज रोशनी आई और अगले ही सेकंड उनका खात्मा हो गया। कम से कम उन डायनासोर्स को तो कुछ भी पता नहीं चला जो क्रेटर के पास रहते थे। एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट से इतनी ज्यादा हीट निकली कि जानवरों की हड्डियां तक राख हो गई। साइंटिस्ट की माने तो जब एस्टेरॉइड जमीन से टकराया तब जमीन से करीब 15 ट्रिलियन टन पत्थरों के टुकड़े हवा में उठने लगे और उड़कर यहाँ वहाँ बिखर गए। इनमें से बहुत से पत्थरों के टुकड़े इतने ऊपर चले गए कि वो स्पेस में भी चले गए। वहीं कई दूसरे पत्थरों के टुकड़े कई हजार फीट ऊपर जाकर एक बार फिर से जमीन की तरफ गिरने लगे थे। ये पत्थर बिल्कुल बारिश की तरह जमीन पर गिर रहे थे। इस फेनोमिना को ग्लास रेन का नाम दिया गया। जो डायनासोर इनिशियल इम्पैक्ट से बच गए थे उन्हें इस ग्लास रेन ने तबाह कर दिया और उड़ने वाले डायनासोर्स को भी इस इम्पैक्ट ने नहीं छोड़ा। लेकिन ये तो उन डायनासोर्स की बात हुई जो इम्पैक्ट के करीब थे। बहुत से डायनासोर्स तो यहाँ से बहुत दूर दूर के इलाकों में बसे हुए थे, यहाँ तक के कुछ तो दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर भी थे। लेकिन एस्टेरॉइड ने एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया था और एक के बाद एक तबाहियां आने लगी। इस इम्पैक्ट की वजह से समंदर में तो करीब 100 मीटर ऊंची सुनामी तक आ गई। आपके अंदाजे के लिए मैं बता दूं कि जापान में जो 2011 में सुनामी आई थी वो सिर्फ 10 मीटर ऊंची थी, लेकिन इसके बावजूद वो पूरा आइलैंड डूब गया था। तो जरा एक बार सोचिए कि 100 मीटर ऊंची लहरों ने जमीन पर रहने वाले जानवरों और दूसरी मखलूकात का क्या हशर किया होगा। इस सुनामी ने यूएसए की फ्यूचर टेरिटरी को पानी में डुबा दिया। इस बड़ी तबाही के बाद जलजलों की बारी थी। मंगोलिया में रहने वाले डायनासोर अभी भी इस इम्पैक्ट से 15,000 किलोमीटर दूर थे। दुनिया के दूसरे हिस्से में होने वाली बड़ी तबाही के बारे में इन्हें कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तबाही धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। एस्टेरॉइड ने एक ही साथ ढेरों जलजलों को ट्रिगर कर दिया, जिनकी मेजरमेंट करीब 11.2 रेक्टर स्केल्स की थी। इन जलजलों से जो झटके महसूस किए गए वो आज तक के मॉडर्न अर्थक्वेक से 50 गुना ज्यादा के थे। साल 1960 में होने वाला सबसे पावरफुल अर्थक्वेक भी 9.5 स्केल का था। जमीन की इस वाइब्रेशन से जमीन पर जितने भी वोल्केनो थे वो सब एक्टिव हो गए। आतिशफशां के फटने से करीब 70 बिलियन टन का मलबा, राख और कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में उड़ने लगे, जिसके बाद वो उतनी ही तेजी से जमीन पर गिरने लगे और इस वजह से टेम्परेचर कई गुना बढ़ गया, जिससे सभी जंगलों में आग लग गई। धूल के बादल जमीन को चारों तरफ से घेर रहे थे, जो उसके रास्ते में आने वाली सारी चीजों को जलाकर राख कर रहे थे। धूल की वजह से जमीन का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। एस्टेरॉइड इम्पैक्ट के सिर्फ 1.5 घंटे बाद ही जमीन की लगभग सभी मखलूकात खत्म हो गयी। बहुत से डायनासोर्स गारों में जाकर बच गए थे, लेकिन ये गारें भी उन्हें ज्यादा देर तक नहीं बचा पाई। धीरे धीरे जमीन पर बढ़ा हुआ टेम्परेचर कम होने लगा, जमीन पर तेजाबी बारिश होने लगी। इस इम्पैक्ट से कई बिलियन टन सल्फर बादलों में पहुंच गए थे। अब वो सल्फ्यूरिक एसिड बनकर जमीन पर गिर रहे थे। इस बारिश ने मिट्टी और पानी को जहर बना दिया। आतिशफशाओं के फटने से जमीन के चारों तरफ धूल और राख के बादल फैल गए, जिस वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। दिन के वक्त भी रात जितना घना अंधेरा था। टेम्परेचर अचानक से ही 28 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया और इम्पैक्ट विंटर की शुरुआत हो गई। जिन डायनासोर्स की किस्मत अच्छी थी और जो सभी इम्पैक्ट से बच गए थे, उनके लिए जमीन पूरी तरह से बदल गई थी। अब जमीन अंधेरी, ठंडी और पूरी तरह से सुनसान हो गई थी। इन डायनासोर्स के लिए जमीन पर बिल्कुल भी खाना नहीं बचा था। हजारों जानवरों की तो भूख से ही मौत हो गई। माना जाता है कि जमीन के अंदर दफन डायनासोर्स के अंडे बच गए थे। जब वो बच्चे उन अंडों से निकले तो उनका इंतजार कर रही थी ठंडी और सुनसान दुनिया। ये वो डायनासोर्स थे जो जमीन पर सबसे आखिर तक जिंदा रहे और आखिर में इनकी भी बुरी तरह से मौत हो गई थी। डायनासोर्स का राज ऑफिशियली खत्म हो गया था। इसके बाद सेनोजोइक एरा शुरू हुआ। कई 100 सालों के बाद धूल के बादल जमीन से हटने लगे और फाइनली सूरज की रोशनी जमीन पर दोबारा से गिरने लगी। कुदरत एक बार फिर से जिंदा होने लगी। प्लांट्स और पौधों का जन्म हुआ। इसके बाद घास भी धीरे धीरे उगने लगी। वो जानवर जिन पर डायनासोर्स का राज था, अब वो इस नई दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हो गए। बहुत से मैमल्स जमीन के अंदर अंडरग्राउंड होकर बचने में कामयाब हो गए थे। जानवरों को एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की आदत हो गई थी। इन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह से ढाल लिया था कि ये बहुत कम खाना खाकर भी कई दिनों तक जिंदा रह सकते थे। मैमल्स का एवोल्यूशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि धीरे धीरे नई मखलूकात भी इवॉल्व होने लगी। उनमें से एक हम इंसान भी हैं जिनका आज इस दुनिया पे राज है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि डायनासोर्स का खात्मा हम इंसानों के इवॉल्व होने के लिए बेहतर
بہتر ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، گڈ بائے۔